अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, म्यूज़िक एकेडमी चलते हैं और देखते हैं कि फ़नकारों के क्या हालात हैं। ओ पुत्र ओ 2 कप चाह मंगा ला भैड़िया, मेरे को पैसे नहीं है, नहीं तो मैं मंगा लेनी सी बेटा 2 कप चाह। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐ ਲਓ ਫੜੋ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਓ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਫਿਰ ਪੀਵੀਏ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ 200 ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦੀ ਚਾਹ, ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਪੁੱਤ। ਓਹੋ ਦੇਣਾ ਜੂਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ। ਐ ਫੜੋ 200 ਮੰਗਾਓ ਚਾਹ ਪੀਵੀਏ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 200 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗਾਵਾਂ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਤੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਫੜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਤਬਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੰਗਾਓ ਚਾਹ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪੱਲਿਓ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਦੌੜ ਇੱਥੋਂ। ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਚਾਹ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲਾ ਪੁੱਤ। ਰੱਖੋ 200 ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਜੇਬੇ ਅੱਛੇ नहीं लगते। अंकल इतनी बड़ी रकम 200 रुपया दे रहे हैं बाबे को, सैन अंगूठे करवा ले, बाद को रफड़ हो गया, हम नहीं आएंगे उस रफड़ में। ਯਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ 500 ਦਾ ਸਟਾਫ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਰਚੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਾ ਲਓ ਚਾਹ। ਪੁੱਤਰ ਆ ਫੜ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤ। चलो ठीक है जनाब, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਡੱਬੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 200 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਓਏ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਮੰਗਾ, ਲੈ ਫੜ ਪੈਸੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 200 ਤੇਰਾ ਵਾ ਤੇ ਚਾਹ ਤੂੰ ਮੰਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਜੂਏ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਮੰਗਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ। यार आप क्यों आपस में झगड़ रहे हैं? चाहे मैं मंगवा देता हूँ, आप हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆ, ਆ ਦੇ 200 ਵਾਪਸ। ਇਹ ਬਹਾਉਣ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 200 ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੰਗਾਓ ਜੀ ਚਾਹ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਡੋਲਣਾ ਵੇ ਡੋਲਣਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਗੜਬੜ ਗੜਬੜ ਗੜ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਡੋਲਣਾ ਵੇ ਡੋਲਣਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਲਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ। ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। क्या कहने। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਿਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸਸਤੇ ਬਲਕਿ ਮੁਫਤ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣਦੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਤਵੀਤੜੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਰੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਵੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਲੀਰ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ ਪੁੱਤ। अली बाबू जी चाय आ रही है? जी हाँ। मेरे लिए और रॉक के लिए ना 2 बंद मक्खन। अली साहब 2 पैटस भी मंगवा लीजिएगा। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਓਏ ਸ਼ੋਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਟਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੈਟਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣੀ ਪੁੱਤ। ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ। जी बिल्कुल। ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਬਾਬਾ ਪੀਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਿੰਜ 'ਚ ਚਾਹ ਆਈ। बाबू जी डब्बे खान TDK ਦਾ ਪੈਟਸ ਮੰਗਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਾਮਾ ਨਿਸ਼ਟਾ, ਉਹ ਕੇਸਟ ਤੇ ਪੈਟਿਸ ਨਹੀਂ, TDK ਦੀ ਕੇਸਟ ਬੇਟਾ, ਪਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆਹਾ ਤਨ ਵਾਲੇ ਨੈਣ ਕਦੋਂ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸੌਣਗੇ, ਟਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਰੀਕ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। नहीं जी, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बोल किया बाबा जी ने। बाबा जी मंगा लो चाय। ओ यार आ रही है चाय, सुनाने थे बाबा जी को।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮਗਾਨ ਡਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆਹਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਆਹਾ ਵੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦੀ ਬਜਟ ਕੀ ਕਮੀ ਲੰਮੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ अरे वाह 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 बाबा जी क्या बात मंगा लो दूध पत्ती देखो अली साहब क्या लोग होए ने अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दवे गुलाम अली खान साहब क्या बात क्या बड़ी दुनिया है क्या कहने ऐसी ऐसी गजल गा दी है ਹਾਏ ਹਾਏ मेहदी हसन साहब खान साहब और गुलाम अली खान साहब क्या कहने जेड़े शहर च भी जाके आए हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह मैं ना लोगों ने बिस्तरे बन ले ने मैं क्या खान साहब तुसी कल्ले नहीं असी सारे ही मुसाफिर हां नहीं जी की गाया हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਲੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੀ यार क्यों बाबा जी को तंग कर रहे हैं आप? बाबा जी सुनाएं आप, क्या कमाल की गजल है। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था ये उसकी गलती सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे सरे गा पापा पापा गा रे सा हम तेरे क्या कहने वाह वाह बाबा जी क्या कहने क्या मंगा लो चाह ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ लगता है चाय के आप लोग बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं। बेटा जी मौसम देखे ना कौन सा जा रहा है जी हाँ। सर्दियों के मौसम में खान साहब लोग रजाई में बैठ के टेलीविजन देखते हुए सिर्फ 2 काम ही करते हैं जिसमें दूसरा काम चाय पीना है और पहला कौन सा है? आहा क्या लजीज सवाल किया है पहला काम बेटा जी पाए के शोरबे वाला प्याला हाथ में पकड़ के रजाई के ऊपर चंगेर रख के उसमें गरम नान रख के एक हाथ से गरम नान का नवाला तोड़ के उसको शोरबे में डबो के खाने का जो मजा है ना वो इतना रंगीन टीवी देखने का मजा नहीं है बेटा जी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी रंगीन नजर आना शुरू हो जाता है ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਨ ਲੰਮੀ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗ लो जी फिर नान 2 मंगा लवो जरा इन्हां दियां धरना वध जान अच्छा ये तो बताएं, आपके घर में अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है? नहीं जी टीवी तो रंगीन है टीवी देखने वाले सारे ब्लैक एंड व्हाइट हैं जो इकट्ठे होके टीवी वेख रहे होंगे ना जी हाँ जी। ते रंगीन टीवी भी ब्लैक एंड व्हाइट ही लग रहा हो अच्छा अंकल ये बताएं पाए का शोरबा ही होता है उसमें बोटी नहीं होती तू अपने दीन ईमान नाल दस चाचा नी फाते नु प्याले च पा के देंदा बोटी ले आर्डर तेरे मुंह च हुंदा ते ओ निरा शोरबे वाला प्याला तेरे हाथ च फड़ा देंदा बोटी इस नाम मुराद नु हमेशा कुलां चलीसवियां ते लभी जे ओ भी मेजबान अपने वालिद साहब दे इसाले सवाब वास्ते नु बोटी देंदे हाँ अंकल ये क्रेडिट तो है रॉक का कुलों की रोटी रॉक से ही शुरू करते हैं और इंज खांदा जे रॉक के खांदियां इनू याद कराना पैंदा कि बेटा नवाला मुंह में डालने और अंदर निगलने के दरमियान चबाने वाला वक्फा भी होता है आने का ऐना कौंडा हुआ है रॉक जिवें एनाकोंडा नहीं बगैर चबाए बंदा निकल जाता ये भी बगैर चबाए पूरी परात निकल जाता जी यार कमाल है, मुझे समझ नहीं आती कि आपको रॉक की खुराक से इशू क्या है।
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਹਾਏ एक फंक्शन पे गए सा, उन्होंने एवं किया कि खान साहब आप हमारे मोहल्ले के मुअज्जिज़ीन हैं, तो सारे जरूर आइएगा खाने पे। ਸਹੀ हालांकि सच्ची गल ये कि वो मुअज्जिज़ीन नाम ही कहते थे, असी जाना ही सी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਏ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਹਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋਈ ਏ, ਤੂੰ ਪਰਾਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੈਰ ਏ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਪਰਾਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਖਾਲਣ ਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਲੜ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋੜੀਆਂ ਜੀ। तो क्या हुआ, उनकी प्लेटें टूटी हैं ना, मेरे सर पे तो कोई चरीट तक नहीं आई। आओ जनाब ये वही कारे ए बैठे ने खान साहब। बिस्मिल्लाह सदके जावा, ये मेरा शागिर्द इंतहाई होनहार है। क्या बात, गुड लुकिंग, क्या बात है। मैं कहता हूँ जी हर दूसरे दिन देखें कैसी आला पार्टी लेके आता है। बेटे अल्लाह तेरी खैर करे, मुझसे अष्टाम पे लिखवा लो, मौला ने तुम्हें बहुत देना है। सदके जावा, देखो जरा कैसी अच्छी पार्टी लेके आया। तशरीफ रखो जनाब। बैठो जी। पार्टी में जरूर है, लेकिन को छोड़े सर, हम आपको ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। ओ भाई, लेकिन दे बाद भी सुन लो। सुनाए जनाब सुनाए, लेकिन अगर सुनाने से पहले थोड़ा सा एडवांस दे दें तो मेरा शागिर्द खास बाग के जरा हाफ सेट चाय ले आए आपके लिए। ओ चाचा, मैं एडवांस देन नहीं लेना आया। आहा, आप भी गुलूकार हैं। और मैं गुलूकार नहीं आ, राती जेड़े ब्याह ते गंद पा के आए हो ना, जो ते चज खिला रहा तुसी, मैं उस क्रॉकरी दा मालक हां। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨਾ ਰਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 28,000 ਰੁਪਇਆ। 28,000 नहीं। ओ नहीं बेटे, एक मिनट ठहरते जाओ बेटा जी। वो जिनके घर में आपने क्राकरी का सामान दिया है, जाके उनसे लें बिल। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो हमारा इसमें क्या कसूर है बेटा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ। और भाई, हमने प्लेटें तोड़ी नहीं है, बल्कि हमारे सर पे तोड़ी गई हैं। मेरे सर में अभी तक दर्द हो रहा है, उस दर्द का बिल दे 80 रुपए। तेरा बेड़ा तर जाए राख, गुरबत मार गई तेनू। वो सिर्फ 80 रुपये का सिर वेच छड़ी। अंकल 80 रुपए की मेडिसिन ली थी दर्द की। फिक्र ना करो, मैं 1-1 रुपये का हिसाब करके जाऊंगा। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਆਵਾਂ। ओ बाबा बह जा, बह जा। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਿਗਰਟ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਆ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਰਟ। ਤੇਰੇ ਬਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਜ਼ੇ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਲਿਆਣੇ ਨੇ। एक्सक्यूज मी ब्रदर चौधरी साहब, नंबरदार, लड़ाई वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमारे 80 रुपए दे दें जो हमारा नुकसान हुआ है। दिया मैं 80 रुपये तानू। होवो जी अगर इन्हें इंज नहीं जे मनना। तो भाई एक मिनट, बैठो आराम से, आप बैठो, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। बैठ जा पुੱਤ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ। ਹਾਏ भाई अभी आपके आने से पहले मुझे इन्होंने सारा किस्सा सुनाया है। अब अगर लड़ाई हो गई है और रॉक के सर पर प्लेटें मारी गई हैं, तो कसूरवार ये नहीं, कसूरवार प्लेट मारने वाला है। आप जाकर उससे पैसे लें। बिल्कुल। और वेखो बाऊ जी, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ 56,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। अच्छा, 28 ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ 28 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਿਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੜਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੜ ਲਓ ਸੋ। आप वीडियो देखें जाके, वीडियो देखें, कसूर किसका, देखें जाके उधर वीडियो। ਹਾਏ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਪਲੇਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਪਲੇਟ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। और भाई, मैं चेहरा बचाने के लिए मुंह नीचे करता था, वो सर पे मार देता था। अगर मेरा चेहरा जख्मी हो जाता तो। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। ਉਹ ਮੁੜ ਜਾ, 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। इतनी ठंड में तो लड़ाई बनती नहीं है, ਹਾਏ चाय पाकर खानी बनती है। बल्कि जितनी सर्दी पड़ रही है आप यखनी मंगवाएं।
ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੈਣ ਡਈ ਜੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਜ ਵਿਹਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਏ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ 28000 ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ 56 ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਵਾਕਈ ਬੇਟੇ ਕੋਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾਈਏ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਅੰਕਲ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਵੇਚ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। एडा ठंडा बिजनेस। ओ बेटा जी हम फनकार लोग हैं, सिर्फ सर्दियों में कारोबार की ही मुश्किल नहीं होती, होर भी सानू 36 स्यापे पै जांदे ने। ਹਾਏ बताओ जरा इसको क्या क्या मुश्किलात हैं आप लोगों को सर्दियों में। और जी कोई एक प्रॉब्लम हो तो आपको बताएं ना। बाबा जी जी सुनाए बाबू जी को पूरी लिस्ट सर्दियों की मुश्किलात की। मुश्किल सर्दी में नहाना लगता है, मुश्किल सर्दी में नहाना लगता है, पानी भी दुश्मन पुराना लगता है। ये बात है। मुश्किल सर्दी में नहाना लगता है, पानी भी दुश्मन पुराना लगता है। झाड़ों में कैसे मैं धो लूं मुंह अपना, झाड़ों में कैसे मैं धो लूं मुंह अपना, दांतों ने म्यूजिक बजाना लगता है। मुश्किल सर्दी में नहाना लगता है, पानी भी दुश्मन पुराना लगता है। गैस भी लेती नहीं है नाम आने का, ख्वाब ही रहता है खाना अब पकाने का। लो चले हल्की सी घंटे बाद फक फक के, बस नतीजा है यही चूल्हा जलाने का। रोटी रोटी पकने में जमाना लगता है, रोटी पकने में जमाना लगता है, पानी भी दुश्मन पुराना लगता है। रोटी पकने में जमाना लगता है, पानी भी दुश्मन पुराना लगता है। मैं के सर्दी में मसलसल कप कपाता हूँ, बेल बजे दरवाजे की मैं कांप जाता हूँ। कौन ठंडी यख बताओ खोले अब कुंडी, मुंह सी लम्हे लहाफ अंदर घुसाता हूँ। हाथ नामुमकिन मिलाना लगता है, हाथ नामुमकिन मिलाना लगता है, पानी भी दुश्मन पुराना लगता है। मुश्किल सर्दी में नहाना लगता है, कभी मुश्किल सर्दी में नहाना लगता है। ले भाई पानी भी दुश्मन पुराना लगता है। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खेतों चो बंदा निकल के ताडे सिर ते पिस्तौल रखे और कवे के बेशक तुसी टायर बदल रहे हो, पैंचर नहीं लवाया, मगर एडवेंचर ये हुई है कि पैंचर दे पैसे दे दिए। नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन एडवेंचर का खब्त जो है ये इंसान के सर पर भूत की तरह सवार हुआ है। ये एडवेंचर वैसे ही होता है जैसे पेंचर होता है। लो वैसे पाकिस्तान में तो पेंचर भी एडवेंचर ही होता है, क्योंकि कोई पता नहीं होता गांव की तरफ जाते हुए आपका अगर टायर पेंचर हो जाए जी तो वहां एडवेंचर हो जाए। तो खेतों चो बंदा निकल के ताडे सिर ते पिस्तौल रखे और कवे के बेशक तुसी टायर बदल रहे हो, पैंचर नहीं लवाया, मगर एडवेंचर ये हुई है कि पैंचर दे पैसे दे दिए। एडवेंचर मुहिम जोई को कहते हैं, मुहिम जोई। मुहिम जोई। जी हाँ, इसका खब्त जो है ये इंसान के सर पे शुरू से ही सवार है जी और इंसान जो है ये एडवेंचर के तौर पर ऐसे ऐसे खबती काम करता है कि हंसी नहीं रुकती। कुछ एडवेंचर आपको पेश करने लगा हूं
ताया एडवेंचर सबसे पहले सुने। जी शुमाली एयरलाइन में एक पैराग्लाइडर फिजा में प्रवास के दौरान होटल की छत से टकरा गया। तसादम के बाद वो होटल की छत पर फिसलता हुआ नीचे की जानिब आया और खुशकिस्मती से मजीद नीचे गिरने से बच गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकारों ने रस्सियों और सीढ़ी की मदद से पैराग्लाइडर को बाहिफाजत नीचे उतार लिया। फायर ब्रिगेड को क्यों बुलाया है, वहां आग लग गई थी। ओए फायर ब्रिगेड आई थी इसलिए उसे ये पूछने के लिए कि तेनू केड़ी अग लगी ही जेड़ा तो पैराग्लाइडिंग करन टुर गई। ये भी एक किस्म की आग ही लगी होती है ना बंदे को। भाई तेनू नहीं पैराग्लाइडिंग आंदी, तू पतंग अंगर आगे अगले की छत ते डिग पे है। ऊपर से आपको पता है वहां पे छतें होती हैं वी शेप की। हाँ जी हाँ जी उतो फिसल के तो उत्ते अड़ गया है बिल्कुल इस तरह जिस तरह गुड्डी बो नहीं अड़दी किसी। अल्लाह का शुक्र करे एकदम नीचे नहीं गिरा, वरना सारी पैराग्लाइडिंग प्लास्टिक ऑफ पेरिस में बंद हो जानी थी। और जहां पे प्लास्टिक ऑफ पेरिस ने काम नहीं था ना करना, वहां पे पट्टियां लपेटनी पड़नी थी। ये तो वहां की वो तकोनी छतों की वजह से बच गया है। और अगर हमारे इलाके की फ्लैट छतें होती तो पैराग्लाइडर ने डिगना ही तो पटाखा बोल जाना। गौरी बहुत अच्छी जुगत करते हो इंग्लैंड जाके। क्या जुगत करता है ये इंग्लैंड जब भी जाता है ना स्टेज पे जाते ही कहता है इंग्लैंड वाले ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤਕੋਨੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ भी नहीं बैठ सकते। मगर देख लो तकोनी छतों का कुछ तो फायदा है ना। जी ये पैराग्लाइडर बच गया है। और मुझे यकीन है इस तरह का बंदा जब जितनी मर्जी जोर से गिरे ना शर्मिंदगी मिटाने के लिए जरूर कहता है कोई ऐसी गल नहीं मैं इंजी लैंड करना। वैसे ये भी अजीब शौक है, बंदे का साह ही सुक जाता है। भाई जी हले तो साह सुकिया ही नहीं, बिल्कुल खुश्क साह वाली भी एक खबर मेरे को है। ये आपने वीडियो नहीं देखी? ऐसी खौफनाक ऑस्ट्रेलिया में एक पैराशूट फंसने के बायस तैयारे की दुम से लटकने वाले पैराशूटर की वो सनसनीखेज वीडियो आई है। ओए 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 अपनी तरफ से वो पैराशूटर जो था ना जी जी उसने तैयारे में से छलांग लगाई है। अच्छा तो तैयारे दे पर नाल फंस गया। ऐसी खौफनाक है वो वीडियो। अल्लाह माफ करे यार उत्ते ते हवा भी बड़ी ठंडी चलती है। शाबाश मरिया साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। हाय और लाजमन इस थिंदे आदमी ने भी नीचे उतर के कहा होगा कि असल में मैं फंसा नहीं था, वो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि कद लंबा करने के लिए जहाज के पर के साथ लटका करो। पहले मैं ये ऐसे अयरा है तफन्नन कह रहा हूँ किधर जाके जहाज के पर न लटक जावे। नहीं थैला इतना बेवकूफ नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा चारपाई पे चढ़ के छलांग लगाता है। माशाल्लाह जिड्डा को है इन्हें किसी दिन चारपाई दे पावे ना लटक जाना है। अच्छा ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया इंग्लैंड में भी पेश आया कि स्टेडियम के अंदर फुटबॉल का मैच हो रहा था। अच्छा और एक पैराशूटर दा होरे निशाना खराब हो गया। वो सीधा आके स्टेडियम दे विच मैच दे विचकार आके डिगा। बगैर टिकटों यार आप लोगों को किसी ਨੂੰ ठंड दी पई है, किसी ਨੂੰ टिकट दी पई है। वो जो गिरते हैं उनकी जान का वक्त पड़ा होता है, अगले को तो कहता है बगैर टिकट तो तुम टिकट ले लो मुझसे, तुम गिर के दिखाओ जाके। ओ यार मैं पागल हाँ। और यार फिक्र ना करो, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। मैदाने जांगे च नहीं मैदाने फुटबॉल च डिग्या भाजी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर क्रिकेट मैच वहां पे हो रहा होता तो अवाम ने समझना था कि शायद कैच पकड़ने के लिए किसी खिलाड़ी ने डाई मारी है। और मुझे यकीन है ये जो थिंदा भाई फुटबॉल की मैदान में डिगा है ना, जी जी इसने भी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उठ के क्या होगा भाई जी किन्ने किन्ने गोल हुए ने। अच्छा एक और इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प वाकया सुने। जी 1971 में ना जी एक ये जो होते हैं अपना हाईजैकर, हाँ जी उसने जहाज अगवा कर लिया अच्छा और उसके पास कोई $2 लाख ना जी उसके थैले में थे। हाँ और उसके पास पैराशूट भी था। अच्छा जहाज का टिकट लेके वो बढ़ गया जहाज से। और फिर उसने दौराने परवाज जहाज के ऊपर से छलांग लगाई है अच्छा पैराशूट के जरिए। जी और आज तक को लभ्या नहीं। ओए पता नहीं जंगलों में गायब हुआ है पैसे लेके या क्या चक्कर था, कुछ समझ नहीं आई।
ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ $2 ਲੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਲੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਵੇਂ 150 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ $2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। यार हाथी भी गन्ने शन्ने खाता है, जड़ी बूटियां खाता है, उसने क्या करना $2 लाख? ओ भाई साहब वो खाना सस्ता खाता है, जड़ी बूटियां या गन्ने शन्ने या पत्ते शत्ते। पानी तो वो एक बार में कोई तकरीबन $2000 का पी लेता है। नहीं यकीन तो पूछो गोगे को। हमारी भाभी ने मुझे एक दफा बताया था कि ये एक गल नहीं कि ज्यादा खांदे ने, इन्हां दा ते पानी दा खर्चा ही नहीं साडे कोलों सांभिया जांदा। मैं कि नींबू पानी पीना। खादा भी बहुत पीते हो, जितना तुम एक टाइम में पानी पीते हो ना उससे तकरीबन 10 गाड़ियां धोई जा सकती हैं। आई एम सॉरी, बात हो रही थी पैराग्लाइडर की और एडवेंचर्स की। इसी तरह ना जी एक हैरी पॉटर मूवी से मुतासर खतून ने ना जी जी पैराग्लाइडिंग का ऐसा अंदाज अपनाया कि जैसे झाड़ू पे परवाज कर रही है। और इस वीडियो को देखकर बहुत सी काम वाली मासियों का हौसला बहुत बढ़ गया। और एक दो ने तो यकीनन अपनी ममटी से झाड़ू पकड़ के नीचे छलांग लगाने की कोशिश भी जरूर की हो। और लाजमन वो बेचारियां वो कपड़े सुखाने वाली जो रस्सी नहीं बांधी होती ऊपर, उसके साथ अटक के गिरी होंगी। हाँ यार जो हवा में होता है वो उसका तो फिर पता नहीं ना होता जी किधर न जावे। वो कौन सा को आलफ लैला वाले कलीन पे बैठे होते हैं। तो पैराशूट है, ये जो पैराग्लाइडिंग है वो तो किसी वक्त हल्की सी हवा आते ही हो तो आपको निशाना जो आपने सोचा होता है जहां पे आपने लैंड करना है वहां से दूर भी ले जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया में एक पैराग्लाइडिंग करने वाले शख्स को जो है तेज हवा ले गई थी दूर, उन्हें जाके किसी होर मुल्क च उन्हें सुट दिता। जो डिगिया ही है ते जेड़े उन्हें फड़न वास्ते आए ने उन्होंने कहा पहले दा वीजा चेक करो। उथे रोन लग पिया कि भाई जी मुझे हवा ले आई है। उन्होंने कहा नहीं वीजा चेक कराओ, हवा तेन ले आई, तू क्यों नहीं पहले वीजा लवाया? तेन तो पता कि हवा ते ही चलन रही है, तू वीजा लेके आ। जेम्स बॉन्ड ओमान में भी एक ऐसा वाकया पेश आया। एक अरबी की सालगिरह थी, वो बच्चों ने बाप को खुश करने के लिए गैसी गुब्बारे कुर्सी को बांधे और बाप को बिठाया और गैसी गुब्बारे कुर्सी को लेकर उड़ पड़े। जी ये बच्चों की हरकत नहीं है, ये लाजमन उस बंदे की बीवी ने बच्चों को कहा कि इन्हों तो किधरे उड़ाओ। ना मैनू शॉपिंग कराउंदा है ना मैनू पेके जान देंदा है। मौका बहुत अच्छा है, साडे ते इल्जाम भी नहीं आएगा। कैसी गुब्बारे जानन ते पुलिस जाने सानू की। यार ये गैसी गुब्बारे से याद आया, ये मुजफ्फर के घर वालों ने आज तक मुजफ्फर को गैसी गुब्बारा नहीं लेके दिया। यार गैसी गुब्बारा तो मुजफ्फर के लिए बहुत ताकतवर चीज है। इसके ऊपर तो कोई हल्की फुल्की मिट्टी शिट्टी भी पड़ी हो ना तो हमारी परजाई मिट्टी फूक मार के नहीं उड़ाती। या तो वो बेचारी दोनों हाथ इसके कंधे पे रख के फूक मारती है या फिर कपड़ा फाड़ के मिट्टी साफ करती है। बल्कि कपड़े से भी मिट्टी साफ कर रही हो ना तो पास से बच्चे कह रहे होते हैं मामा ध्यान से अब्बू मिटा ना देना। एक्सक्यूज मी, मैंने मुजफ्फराबाद में पैराग्लाइडिंग की हुई है। सॉरी यार सॉरी, इसने मुझे बताया था, इसने एक दफा शापर को धागा बांध के पैराग्लाइडिंग की। इसने टेक ऑफ मुजफ्फराबाद से किया और लैंडिंग मीरपुर में आगे की है। और जब ये पैराग्लाइडिंग करते हुए उड़ा है ना तो पीछे से इसके सारे मोहल्ले वाले दुआ करना शुरू हो गए कि राह च कोई चील ना पै जाए। अल्लाह खैर खैरियत ना लैंड कर जाए, रास्ते च कोई चील ना आए। फिर जब ये खैर खैरियत से मीरपुर पे लैंड किया है ना तो इसने कहा कि देखो यार इतनी दूर में आ गया हूँ। फिर एक पैराग्लाइडिंग के एक्सपर्ट ने इसे समझाया भाई जी ये आपकी गलती है, आपने किलो वाले शापर के साथ धागा बांधा है, आइंदा आपने आधा किलो वाले शापर के साथ बांधना है। जेम्स बॉन्ड मैं पैराग्लाइडिंग कर सकता हूँ? हाँ जी, आपने पैराशूट के साथ नहीं कभी भी करनी पैराग्लाइडिंग, ये जो शादियों के लिए कनोपी लगती है ना उसके साथ कर। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये तब्दीली मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत हैं से भी नहीं आएगी। फिर कैसे आएगी तब्दीली चौधरी साहब?
साबन तौलिया फाड़ते होने तब्दीली आ जाएगी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। आप ठीक ठाक हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र। देखें अली मुमताज़ साहब, सर्दी बहुत ज़्यादा है और मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता। आपके स्टूडियो में वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं तो अपनी रजाई भी थल्ले गड्डी च रख आया। बहरहाल मैं पाकिस्तानी सियासतदानों को भी और पूरी कौम को भी बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। जी चौधरी साहब, एक ही क्यों, आपका ये अपना प्रोग्राम है, आप 10 बातें करें। गौरी साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन मैं इस कौम को जानता हूँ। 10 गल्लां कीतियां ते इन्हां नूं एक भी नहीं याद रहनी। अज तक दे मुतालिया पाकिस्तान जो देखो अद्धी कौम फेल हो जाती है सिर्फ इस गल्लों कि इन्हां नूं कायदे आज़म दे 14 नकात ही नहीं याद होंदे। 10 गल्लां कीतियां ते 10 ते 14 का कोई इन्ना फर्क तो नहीं ना हैगा। हाय इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ और वो भी बस शॉर्टकट कहना चाहता हूँ जी जी कि बंदे बन जाओ। चौधरी साहब ये गल कहनी सौखी है, पर बंदे बनिए किवें? चलो फिर ना बनो। मेरा मतलब है मुल्क किवें ठीक होएगा? हाय देखो मिर्ज़ा साहब, बात ये है कि सियासतदान अगर खुद को ठीक कर लें तो कौम को लेक्चर देने की ज़रूरत ही ना पड़े। वाह। और कौम जो है अगर अपने हकूक़ के साथ और अपनी जिम्मेदारियां भी याद रखे जी तो सियासतदान खुद ही सीधे हो जाएं। वाह। कौम भी मासूम नहीं है। वैसे कहते रहते हैं कि सियासतदान बुरे हैं, मगर कौम की अपनी आदतें क्या हैं? हाँ कितार में खड़े होना पड़े तो रिश्वत दे देते हैं, हाय कानूनी मसला हो तो सिफारिश करवा देते हैं, बिल्कुल और खुद पे अगर जिम्मेदारी आ जाए तो सिर्फ ये कह के जान छुड़ा लेते हैं कि एक हुकूमत का काम है जी। हाय मैं ये नहीं कहता कि सब फरिश्ते बन जाएं, बस इतना कहता हूँ कि कम से कम इंसान तो बनना चाहिए हमें। वाह 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 वाह। वो क्या किसी शायर ने कहा है, हो सके तो किसी दिन मेरे मेहमान बनो, और कुछ बनो ना बनो बेशक इंसान बनो। हैं चौधरी साहब, ये तो किसी भी शायर का शेर नहीं गा, ये तो तुसी अपने को जोड़िया। गौरी साहब थानू की लगदा मैं शेर नहीं जोड़ सकता? इतने सारे मुल्क दियां सियासी पार्टियां फड़ के मैं जोड़ लेना तो शेर की है मेरे अगे। क्या कहने। वाह वाह चौधरी साहब वाह। और वैसे भी अल्लाह के फजल से गौरी साहब सारी जिंदगी हमने जोड़ने में गुजारी है, तोड़ा नहीं हमने किसी को। वाह। जी हम एक दूसरे को जोड़ने वाले हैं। वो अलग बात है कि हम जितनी भी जोड़ने की कोशिश करते हैं फिर कोई ताड़े वर्गा को पहाड़ी बकरा सिंह मार जाता है। चौधरी साहब छोड़े इन बातों को, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। कौन सा नया साल है? देखें अली मुमताज़ साहब, इस साल बदलन ना कुछ नहीं होना, जिन्नी देर तक असी नहीं बदलेंगे साल बदलन ना की होएगा। हाय हाय हाय। देखें जी, सबसे पहले तो मैं कौम की एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। ये नया साल कोई जादू की छड़ी नहीं है। जब हम ही नहीं बदलेंगे तो फिर साल बदलने का क्या फर्क पड़ेगा? वाह वो क्या खूब किसी ने कहा है, जब हम ही ना महके तो साहब उसकी खुशबू कहीं बसी ही नहीं। चौधरी साहब, आप शायरों में भी ताहद करवा रहे हैं। ये दो अलग अलग शेर हैं। पहला उबैदुल्ला अलीम साहब का शेर है, जब हम ही ना महके फिर साहिब तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। जी, और दूसरा जॉन एलिया साहब का, ये सुना है कि मेरे कूच के बाद उसकी खुशबू कहीं बसी ही नहीं। वाह 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 वाह। ये जॉन एलिया साहब वही सन ना जिन्हें वो जहाँ बनते पैसे नहीं सने। मेरा मतलब है वो लंबे लंबे बालों वाले। हाँ जी हाँ जी। वैसे अली मुमताज़ साहब, आपके प्रोग्राम का नाम है हस्बे हाल। जी
ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। हाय चौधरी साहब नए साल पे बात चल रही थी। जी हाँ, नए साल में तो हम सब ऐसे ही खुश होते हैं जैसे नया साल नहीं है, नई हुकूमत आ रही है, जिसने आते ही सारे काम ठीक कर देने हैं। चौधरी साहब उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। वो थैला साहब, वो उम्मीद और होती है जिसमें दुनिया कायम है। हमारा तो ये मसला है कि हम उम्मीद को भी उस लिफाफे में रखते हैं जिसमें लिखा होता है जो होगी वेखी जाएगी। हम समझते हैं कि जैसे ही 31 दिसंबर की रात 12 बजेंगे जी तो सारा पाकिस्तान स्विट्जरलैंड लगना शुरू हो जाएगा, सब मसले खुद ही हल हो जाएंगे। बल्कि एक दूसरे को मैसेज भी भेज रहे होते हैं कि देखना ये तुम्हारे लिए वो साल बहुत अच्छा रहेगा। हाँ तो यार कुछ करो भी, बाहर निकल के मैसेज ही करी जाती है एक दूसरे को। तो क्या शेर है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। चौधरी साहब आपका ये शेर सुन के मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर में लड़ाई हो जानी है। लड़ाई का लिए हो जानी है, वो किहड़ा नून लीग ते पीटीआई दे ने। आजकल तो इको ही लड़ाई चल रही है, नून लीग ते पीटीआई। हाय मीडिया पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, हर जगह इन्हीं की लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। जी देखें बात ये हो रही है कि साल बदलने से हालात नहीं बदलते, जी हाँ। इससे सिर्फ कैलेंडर बदलता है, तारीख बदलती है, दिन बदलता है, कौम तो वही रहती है ना, सियासत वही रहती है, वादे वही रहते हैं। बाद सियासतदान तो तकरीर भी वही करते रहते हैं जिसमें उन्हें एक बार क्लैप मिल जाए। हाय चौधरी साहब, इसका मतलब है कि इस मुल्क में तब्दीली कभी नहीं आएगी। गई तो डांग फड़ के अद्धा घंटा तेरे ते लाया होवे ते आप ही तब्दीली आ जाए। तो खैर दा बोल तुसी गोगा जी। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन ये तब्दीली फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस से नहीं आएगी। जी ये तब्दीली मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत हैं से भी नहीं आएगी। हाँ फिर कैसे आएगी तब्दीली चौधरी साहब? साबन तौलिया फाड़ते होने तब्दीली आ जाएगी। यार बात फिर बार बार वही दोहराना कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को बदलें, एक दूसरे को लान तान करने की बजाय अपने आप को बदलें, बिल्कुल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की बजाय अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं। वाह हम जिम्मेदार हैं, हर बंदा जिम्मेदार है, हर बंदा अपने आप को तब्दील करे, तब्दीली आ जाएगी। हाँ जी और तब्दीली कोई नहीं होने के हेयर स्टाइल बदल लो तो तब्दीली आ जाएगी, या तंग पहुंचे की बजाय उन खुले पान लग पाओ तब्दीली आ जाएगी। देखें हमने कुर्बानी का जो लफ्ज़ है ना, कुर्बानी का, जी जी वो सिर्फ तकरीरों में इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है। इस पे अमल करना पड़ेगा मेरे भाई। जब तक आप एक दूसरे के लिए, मुल्क के लिए, अच्छे हालात के लिए कुर्बानी नहीं देंगे तो की बनना साडा। जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। हाय ਗੋਗਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ, अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਆ ਗਈਆਂ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਆਇਆ ਉਹ ਪਕਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਂਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਗੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਰੱਖੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਦਾ। जी ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। यानी हम तो जिहाद ढूंढ लेते हैं अली मुमताज साहब, हाँ जी हाय ਅਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀਆਂ तो जिहाद बना लेने हैं। जी भाई जो हुक्म है इंसानियत का, जो हुक्म है फिर जिंदगी का, जी जो हुक्म है
हुक्मरानों का, या मेरा मतलब है रियासत का जो कवानीन कहते हैं जी जी वो उस पर अमल करें, बात खत्म हो गई। वाह एक दूजे ਨੂੰ बेइज्जत करी ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी और मैं ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਜੌਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਜੀ। फरमाया तो मैं और भी बहुत कुछ है, तेन सिर्फ गोश्त ही याद है। इस असल में इस कौम का मसला ही है वली मुमताज साहब। जी हम वही सुनते हैं जो हमारे दिल को भाता है, हाँ जी और कुछ हम सुनने को तैयार ही नहीं है। हर मसले में अपनी तौजीहात ढूंढ लेते हैं जिससे हमारा फायदा हो। बिल्कुल सुनाने ਲਈ हर वेले तैयार रहने हैं, सुनने से कोई तैयार नहीं। हाय जौहरी साहब मैंने सोच लिया इस साल मैं अपने आप को बदल लूंगा। अपने आप ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਦਲੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਲਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਲੈਣਾ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। वैसे चौधरी साहब, आप जैसे सीनियर सियासतदान का नए साल के मौका पर अवाम के लिए क्या पैगाम है? कौम के लिए तो मेरा सिर्फ यही पैगाम है, तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब। कभी कोरोना, कभी धुंध, कभी बारिश, कभी सैलाब। हेलो चौधरी साहब, अच्छा ऐसा करें, कोई सियासी सूरत हाल के बारे में ही बता दें। सियासी सूरत हाल पे बस इतना ही तबसरा काफ़ी है। मसलहत के सबब हम खामोश हैं, वरना हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चीचू बीचू याद होगा, हाँ। तो किसी वीडियो गेम का कोई करैक्टर है। जी मोटू पतलू याद होगा, हाँ अम्मी अबू नहीं याद होगा, आए तो बाद चो मोटू पतलू पहले। अच्छा जी, हस्बे माजी में आज एक इंतहाई सेंसिटिव और बड़ा अहम जो है ना जी टॉपिक, उस पे बात करते हैं। जी अब जो रातें हैं ना जी बच्चों के लिए, जी जी वो बड़ी खतरनाक बन गई हुई है। क्योंकि हमारे दौर में, हमारे बचपन में, या 20-30 साल पहले, 40 साल पहले तक जी जी माएँ बच्चों को सुलाने के लिए ना जी जो तरकीबें इस्तेमाल करती थी वो और होती थी। लोरियां होती थी, हाँ जी ये हमारी सकाफत का हिस्सा रही हैं लोरियां, हमारी ही नहीं, गोरे के हाँ भी सुनाया कि इस तरह की वो पोएम शोएम ये वो सुनाया करती सुनाते थी। हैं बच्चों को हाँ जी मगर चूंकि हम अपनी सकाफत की बात करने लगे हैं, जी जी वो लोरियां जो होती थी ना जी, उनमें कोई ना कोई नसीहत होती थी, बिल्कुल उनमें कोई ना कोई हौसला अफजाई होती थी, उनमें कुछ ना कुछ बच्चों को तालीम दी जाती थी। जी हाँ, बिल्कुल सर बच्चा वो सुनते सुनते सो जाता था। और मुझे बाखुदा याद है कि वो इतनी दिलचस्पी से बच्चे सुनते थे, इतनी दिलचस्पी से सुनते थे कि बच्चे जब हल्के फुल्का बोलना शुरू हो जाते थे तो वो माँ से खुद कहते थे कि मुझे वो सुनाए। लेटते ही ना जी वो कहते थे, बच्चे फरमाइश करते थे। और फिर ये था जो सबसे अहम चीज है जी जी कि बच्चों को जब बोलना भी शुरू करते थे ना बच्चे, तो सबसे पहले अल्लाह पाक, अल्लाह कहना सिखाते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिखाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बोल रहा होता था बच्चा तो उसको कलमे सिखाने शुरू करते थे, हाँ जी बिल्कुल उसको इस तरह के सवाल जवाब सिखाए जाते थे जिससे सबसे पहले इस्लामी हवाले से तरबियत हो। तरबियत तो हाँ जी अब आप देखें कि बच्चों को चूंकि सोने के लिए माएँ मोबाइल पकड़ाती हैं, हाँ और बच्चा भी बिस्तर पे लेटते ही कहता है कि मैनू मोबाइल दियो, मोबाइल दे दो और वो नहीं हटता जिन्नी देर तक उन्होंने मोबाइल ना दियो। ऐसा बुरा रोंदा है बच्चा हुण मोबाइल ना मिलने की वजह से कि हैरानगी होती है, यार ये क्या हो रहा है। हाँ जी सर और माँ बाप भी ना जी मोबाइल पकड़ा देते हैं। उससे चलो एक तो ये कि वो जो तरबियत होती थी चारपाई के ऊपर रात को सोते हुए, जो बच्चों की तरबियत होती थी वो तो खत्म हुई जो हुई, जी 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 उसके साथ साथ बच्चों की सेहत में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात इंतहाई खौफनाक असर पड़ रहा है, सिर्फ आंखों पे ही नहीं दिमाग पे भी। सेहत भी हाँ जी ऐसी ऐसी अब तो खौफनाक, अल्लाह पाक सबके बच्चों को महफूज रखे। आमीन। अब तो साइंस वाले ऐसी ऐसी खौफनाक बीमारियां बता रहे हैं जो सिर्फ ये मोबाइल की वजह से बच्चों में पैदा हो रही पैदा हो रही है। बड़ी खौफनाक बीमारियां।
बिल्कुल सर। और फिर बच्चों को अब रोशनी में सोने की आदत पड़ गई। ये भी एक बड़ा अहम पहलू है। हमें याद है कि घरों के अंदर ना जी दिए शिए या लालटेनें वगैरह ये वो पहले तो जला करती थी, उसकी रोशनी ऐसी होती नहीं थी जी कोई आंखों पे असर करे या दिमाग पे असर करे। मगर जब ये बिजली घर घर आ गई, मेरे गांव में बिजली आई है। मेरी गांव में बिजली आई है, एक चलता होता था जी इश्तिहार। जब बिजली भी हर जगह पहुंच गई तो उसके बाद भी लोग कम से कम रात को बल्ब या दूसरी रोशन चीजें बंद कर देते। बंद कर जी जी सर। बच्चों को अंधेरे में सोने की आदत होती। हाँ जी अब ये जो है ना जी जेनजी जिनको कहते हैं, जेनजी, जी हाँ जी और खास तौर पे ये जो मोबाइल वाले बच्चे हैं, बच्चे जी हाँ। बिल्कुल ये अब बल्ब बुझाएं तो ये फिर रोने शुरू कर देते हैं। अब जलते हुए बल्ब में रोशनी में बच्चों को सोने की आदत है, अक्सर बच्चों हाँ को, जी। अक्सर बच्चों को। बहुत सारे हाँ जी इसका सेहत पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। जी हाँ। और तरबियत अलहदा खत्म हो गई। बिल्कुल सही। मतलब मुझे याद है माओं का चेहरा खुशी से भरपूर, ओए होए होए, बाप खुश हो जाते थे जब बच्चा अल्लाह कहता था जी, क्योंकि उसे कहा ही बार बार ये जाता था, या अब्बा भी, अब्बू या मामा भी कहते थे, अम्मी भी कहते थे, जी मगर साथ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह की चीजें सिखाते थे। वो सारा खत्म हो गया। सवाल जवाब में बच्चे से पूछा जाता था कि हमारा खुदा कौन है, अल्लाह पाक, हमारे रसूल कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा मज़हब क्या है, इस्लाम, हमारे कलमे कितने हैं, 6, हर चीज़। हाँ जी सर। ये छोटे छोटे सवालात जो हैं ये तो बच्चों को स्कूल जाने से बहुत पहले ये याद हो गए होते, माँ सिखाती थी हाँ जी। बच्चों को याद हो गए होते थे। और बच्चों को मेहमानों के सामने कहा जाता था हाँ कि चलो पहला कलमा सुनाओ, तो वो तोतली सी जुबान से सुना रहा होता था, तो सिर्फ घर वाले ही नहीं फख्र महसूस कर रहे होते थे, मेहमान बड़े खुश होते थे कि माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो पूरा कलमा सुना रहा है, हाँ। इतनी उम्र है इसकी। वो गुफ्तगू शुरू हो जाती थी। अब तो बच्चे को ना अम्मी अब्बू का नाम याद होता है, ना कुछ, मिकी माउस पूछ लो, चीचू बीचू याद होगा, हाँ। तो किसी वीडियो गेम का कोई करैक्टर है, जी मोटू पतलू याद होगा, हाँ अम्मी अब्बू नहीं याद होगा, आए तो बाद चो मोटू पतलू पहले। देखो ना जरा, हैरान कुन चेंज आई है, और ये बड़ी खौफनाक चेंज है जिसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। हाँ जी सर बिल्कुल। ये मुझे इसलिए याद आया कि एक डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आजकल हर तीसरे शख्स को नींद ना आने या कम नींद आने या बार बार नींद टूट जाने की शिकायत है। जी और इसकी सबसे बड़ी वजह मसनूई रोशनी का बेतहाशा इस्तेमाल है। वो कहते हैं कि हम रात के अंधेरे को नेमत समझने की बजाय अब उसे जबरदस्ती दिन बनाने पे तुले हुए हैं, हाँ जी जिसकी वजह से नींद के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जी मैं आपको बता रहा हूं ना जी कि लाइट बंद करके माएँ लोरियां सुनाती थी, कहानियां सुनाती थी, बच्चे उसके आदी हो जाते थे। ये बच्चों का कसूर नहीं है यार, बच्चा तो एक कंप्यूटर है, उसकी बोर्ड की जो जो की आप टच करेंगे वो स्क्रीन पे आ जाएगा। बिल्कुल सही। ये तो एक इंतहाई फजूल बहाना है ना जी, कि क्या करें, ये नहीं छोड़ता मोबाइल। हाँ भाई आपने उसे पकड़ाया है पहले, बिल्कुल आपने बेशक हंडिया पकाने के लिए, या आपने को घर का काम करने के लिए, या अपने दोस्तों में बैठने के लिए अब्बा जी बेटे को मोबाइल दिया है, इसलिए बेटा अब जो है वो रोता है मोबाइल ना मिलने पे। हाँ जी ये आदत आपने ही डाली है वो उसको। डाली है बिल्कुल। वो जहां जब पैदा हुआ था उसको कोई वो गायनी की नर्स ने नहीं था बताया कि बेटे घर जाते ही अब्बू से मोबाइल मांगना। भाई उसको आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है ना। हाँ भाई मेडिकल भी ये कहती है कि जो दिमाग है ये आदी हो जाता है, चाहे रोशनी का, चाहे रात का, अंधेरे का। रब्बे कायनात ने यार ये रात किस लिए बनाई है, बिल्कुल क्या सिस्टम है, इसकी कोई ना कोई वजह है। सीधी बात है,
सही। वरना अल्लाह पाक के घर में कौन सी कमी थी। ये कहते हैं जी जमीन गोल है, तो अल्लाह पाक उसे घुमा कर सूरज के आगे उसके मुख्तलिफ हिस्से लाने की बजाय, दिन रात करने की बजाय, अगर रोशनी ही चाहिए होती, रात का कोई फायदा ना होता, जी। तो अल्लाह पाक जमीन को घुमाने की बजाय एक ही जगह साकत रख के उसको 10-12 सूरज दे देते, हाँ हर तरफ रोशन हो जाती। बिल्कुल भाई मेरा मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई मकसद है। मकसद बिल्कुल। रब्बे कायनात ने अगर इसको जमीन को ऐसा सर्कल दिया है, जी जी जी। ऐसी मूवमेंट दी है कि इसका हर इलाका जो है वो सूरज के आगे रहता है, और फिर 8-10 घंटे के लिए इसमें अंधेरा होता है, तो वो इसीलिए होता है कि अंधेरे में सोने का कुछ फायदा है। फायदा है, बिल्कुल सही। मोबाइल आंखों के सामने रख के उसको पकड़े पकड़े सोने का बहुत खतरनाक नुकसान है। खुदा के वास्ते इस तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।